Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we praise your holy name. Hallelujah. Lord, we magnify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Hallelujah. We bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं, आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we thank you so much for the blood you shed for us. You suffered beyond human words can describe, and you bled like a fountain, and you died the death that no one else could die. Thank you, Father. Thank you that it pleased you that you may bruise him, that you may crush him, that you may make him sin offering, that his sore might be poured out before you like an oblation. Thank you, Father. Thank you, Holy Father. Thank you, Jesus. We remember Calvary. We remember Calvary, Lord. This evening, Lord, we come to you through Calvary, through the blood on the Calvary. Father, I plead that blood over Ravi Prakash Gupta, who's online, Sahil from Pakistan. I plead the blood over Leena Davidson and her household. I plead the blood over Brother Harpal Bajwa. I plead the blood over Vinod Christian from Canada. I plead the blood over Ruby Sanghera from Britain. Lord, I plead the blood over Renu Kathuria. I plead the blood, Lord Jesus of Nazareth, over Akansha Kumari. Lord, I pray that you bless her, that you surround her, that you keep her under the hedge of the blood of Jesus. She and her family in Britain, Lord, I pray that your Spirit will move, that your Spirit will forge them true children of the Most High God. And Father, for Amarjit Kaur, your hand be upon her, over Brother Bobby Art, Lord, that you may touch him. And Lord, Wrinkle Gaba Kathuria, your hand be upon her, over Brother Raman Khan and his family. Lord, over Tanuja Seth and her household. Lord, I bless Sister Jyoti Angelina. I pray for her brother, Lord, that he will be delivered by the power of the Holy Spirit. I pray for her mother, Lord. I pray, Lord, deep penetration of the Holy Spirit. Let every evil that enemy has plotted against her family, every wicked plan that Satan devised against her brother in particular,
will be destroyed in the name of Jesus. Lord, may you send your angels around her. And Lord, may you dispatch your mighty angel to deliver and rescue her brother in the mighty name of Jesus. Bless Tanuja Seth, your daughter, Lord. Amarjit Kaur, your daughter. I pray for Angela Drok. If I am pronouncing incorrectly, I beg your pardon. Drok or Droch. I plead the blood of Jesus over you, and I ask the Lord God Almighty to unleash His angels around you. And I pray that your heart will be drawn to Jesus, and your heart will surely be melted in the presence of His love. Hallelujah. Bless Rosie Singh. May you surround Rosie Singh with the songs of joy and deliverance. Hallelujah. May your hand be upon the group, Team Joshua group in Delhi, Father. Everybody that is connected, may you bless and prosper. Father, I bless Sunita Kaur, your daughter. She loves you, and she loves you deeply. I pray that your love will sink even deeper. Give her a revelation of who you are. Oh, mighty God of Israel, give her the revelation of your might, power, and your glory. Let her see your splendor and your mighty power. Lord, stretch forth your mighty hand over her children and her children's children in the mighty name of Jesus. I pray, Father, for Amrish Kumar, your servant. Bless him, bless his family, bless his household, Lord Jesus. Hallelujah. Cover him under your blood. I pray, Father, you cover under your blood Darshan Singh from Jalandhar, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, our loving Savior, loving Redeemer, we bless you. We glorify your name. खुदावंद हम तेरी स्तुति करते हैं. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा करते हैं. तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदावंद. हालेलुया. तुझे धन्य धन्य कहते हैं प्रभु. तुझे धन्य धन्य कहते हैं. तुझे धन्य धन्य कहते हैं. Lord, you are blessed, you are blessed. Jesus, your name is blessed. We proclaim your name, Yahushua HaMashiach. I declare your name, Yahushua HaMashiach. I declare your name, Yahushua HaMashiach. I declare your blessed name, Yahushua HaMashiach. I declare your sovereign reigning and triumphant name, Hayya Asher Hayya. Hayya Asher Hayya. Yod He Vav He. I declare your blessed name, Hayya Asher Hayya. I declare your mighty name, Chodosh, Kodosh, Kodosh, Yahuwah Sabayo. Kodosh, 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 Yahuwah Adonai Sabayo. Kodosh, 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 Yahuwah Adonai Elohim El Shaddai Sabayo. Yahuwah Sabayo. I declare your blessed name, blessed name, blessed name. Lord, I ask your angels to be deployed around my children, around my wife, around my mother, around myself, my mother and my brothers and their houses. And Lord, I ask your angels to be deployed around everybody that is connected to your servant in India and in different nations of the world. Father, I remember all your beloved children who pray for your servant. May you prosper them. May the blessing of our father Abraham, may the blessing of the covenant fall upon them in the name of Yahushua HaMashiach. Father, everyone that has financially sowed into the life of your servant, may you reward them according to Deuteronomy 1:11, 1,000-fold increase, I pray. You have two standards, Father, 100 and 1,000. I pray for the 1,000-fold blessing, Father, in the name of Jesus. Lord, I pray for the teenagers of Rosie Singh, Raymond, Ryan and Rachel, that they may grow in faith, that they may grow in the spirit of the fear of the Lord. Lord, I pray that your spirit will touch them in a way that their walk with you is revolutionized. Father, I ask you to send your angels around them. I bless Samina Ashraf. May your hand be upon Samina Ashraf. Hallelujah. Father, may your spirit move in her life in the mighty name of Jesus. May your spirit move in a deeper fashion, like your spirit moved never before. May you touch Sandeep's life, Lord. May you touch his life and may you show him your glory, who you are, your ways and how you work and how we must behave and how we must
walk before you, the things that please you and the things that displease you, Father, that a walk, a conduct, a very character is transformed by the fire of your presence. Lord, I pray for your fiery presence. Hallelujah. You have not planned any slog phases in a life. There is nothing supposed to be sluggish in a life. We are supposed to be flames. You have designed us to be flames, Lord. Flames of your presence. Hallelujah. Lord, I pray for Lupita McCarthy. I pray for your blessing. I pray for your precious fire to descend over her life. Father, I pray in the name of Jesus that your Spirit will touch her. Touch her in the arenas of her persona where the Holy Spirit hasn't ever touched her. May your love melt her. May your love melt her. Forge her according to the express image of your Son, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Father, we bless you. You designed us to be flames. There is no lukewarmness in the kingdom of the Lord. Hallelujah. And there are no predestined slog phases in the life of your children. Nothing sluggish in a walk, Father. Father, I pray for this prayer request of Sweetie Williamson. May your hand touch Sweetie Williamson and Navita Sihare. Father, in the name of Jesus, may the healing unction be unleashed. Make us the flames of your presence, Lord. शोले है ना सरी के हवाएं बुझाए क्यों, खादिम है हम खुदा के बलाएं सताए क्यों, शोले हैं ना सरी के, शोले हैं ना सरी के, हवाएं बुझाए क्यों, खादिम है हम खुदा के बलाएं सताए क्यों, शोले हैं ना सरी के। खुदावंद की आग में चलिए, डेली पवित्र आत्मा की अग्नि में चलिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ द मिस्ट्रीज ऑफ जेरूसलम। कुछ I think we will have 3 or 4 sessions, maybe 6 or 7 hours teaching on this subject. बहुत ही अद्भुत विषय है। हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहला वचन जो भविष्यवाणी के रूप में दिया अदन की वाटिका में, वो जेनेसिस 3:15 है। अदन के बाग में आदम है, उसकी पत्नी हवा है, और वहाँ पे नखाश है। अगर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने बताया कि 5 authorizations that God gave unto Adam. 5. There are 5 unique, profound Hebrew words for that. अगर आपको याद होगा तो मैंने वो वचन आपको 3-4 दिन पहले दिया है। परमेश्वर ने आदम से एक खास बात कही, रिप्लेनिश द अर्थ। इंग्लिश में लिखा रिप्लेनिश द अर्थ, और हिंदी में लिखा पृथ्वी को भर दो। 5 बहुत ही यूनिक हिब्रू वर्ड्स अगर आपको याद हो। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27-28 में 5 ज़बरदस्त शब्दों पे मैंने आपको शिक्षा दी थी। परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल। हिब्रू वर्ड है पराह, जो उसकी रूट है, एंड द वर्ड इज पराश, जिसका मतलब ब्रांच आउट, अपने जैसी शाखाएं पैदा करता जाए। दैट ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट द फैमिली ट्रीज।
May your family trees abound exceedingly that they multiply on the face of the earth. Just like a creeper, a creeper that begins to spread on the tree. प्रभु ने बोला फ्रूटफुल हो. फ्रूटफुल का मतलब फलो फूलो, जो लिखा हिंदी में. पहला वर्ड, पहली ब्लेसिंग 5 ब्लेसिंग में से है पराश, पारा, बी फ्रूटफुल. और दूसरी ब्लेसिंग है मल्टीप्लाई, भर दो, जो हिब्रू वर्ड है रबाह, जिसका मतलब है अबाउंड एक्सीडिंगली, न्यूमेरिकली, इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली, एक अद्भुत रीति से बढ़ता जा. और तीसरी ब्लेसिंग प्रभु ने उसको दी थी रिप्लेनिश, भर दे. लेकिन रिप्लेनिश बहुत यूनिक वर्ड है. रिप्लेनिश, इसके लिए ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है मले, मले, मिलो मले, जिसका असली मतलब क्या है? पृथ्वी को मले कर, रिप्लेनिश कर. अर्थात हिब्रू में क्या वर्ड है कि तेरे को मैंने लाठी दी है, अधिकार का स्टाफ दिया है, बड़ा सोटा दिया है, उसे अपने हाथ में ले. सेट स्पेस, कंफर्म एंड अकम्प्लिश, दीज आर डिफरेंट मीनिंग्स. हदबंदी कर, हर एक चीज को कंफर्म कर अपने दिए अधिकार के द्वारा और मुकम्मल कर. वो लाठी थी एक चरवाहे की, और लाठी थी एक याजक की, लाठी थी अधिकार की आदम के पास, जिसको उसने इस्तेमाल नहीं किया. और चौथा जो बरकत परमेश्वर ने आदम को दी, प्रभु ने कहा कब्जे में कर. हिब्रू वर्ड है सबड्यू, इंग्लिश में वर्ड है सबड्यू, लेकिन हिब्रू वर्ड है कबाश, जिसका असली मतलब है कबाश का ब्रिंग इन बॉन्डेज, गुलाम कर अपने इर्द गिर्द की शक्तियों को. परमेश्वर किनको कबाश करने के लिए कह रहा है? क्योंकि बहुत सी शक्तियां अनलीश हो चुकी हैं. शैतान 1/3 दूतों के साथ गिराया गया है. सो गॉड इज टेलिंग एडम, यू मस्ट डू कबाश इन हिब्रू, ब्रिंग इन बॉन्डेज, कीप अंडर, ब्रिंग इन सब्जेक्शन, कीप इट विद फोर्स. जो कुछ मैंने सृष्टि में सृजा है, इसको फोर्स के साथ, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ कब्जे में रख. प्रभु आदम को बता रहा है पृथ्वी और पृथ्वी की सारी सृष्टि कुछ ऐसी अनसीन शक्तियां हैं, अदृश्य ताकतें हैं, जो इन्हें तेरे हाथ से छीनेंगी. तू इन्हें अधिकार में रख. हिब्रू वर्ड है मले, भर दे, रिप्लेनिश कर, मले. और सबड्यू करने के लिए, कब्जे में रखने के लिए हिब्रू वर्ड है कबाश. बहुत यूनिक हिब्रू वर्ड है, मतलब ताकत के साथ अपने अधिकार में रखने. अगर तू उस अधिकार को और उस अथोराइजेशन को, सामर्थ को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कोई और अधिकार करेगा. चौथी चीज़ है कबाश. और पांचवी चीज़ है डोमिनियन ले, राज्य कर इनके ऊपर. हिब्रू वर्ड है राडा, जिसका मतलब है, राडा का मतलब है टू रेन, टू रूल, टू प्रिवेल, टू कैप्चर एवरीथिंग कंप्लीटली. हर एक चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा करके रहे. ये ब्लेसिंग 5 ब्लेसिंग है, पारा, रब्बा, मले, कबाश, रडा. परमेश्वर ने आदम को दे दी, और परमेश्वर चाहता है कि आदम इन अधिकारों का इस्तेमाल करे, लेकिन उसने नहीं किया. उसके हाथ में जो लाठी है, आपको मालूम, मैंने एक और वचन आपको दिया था कि प्रभु ने उसको एक बड़ी यूनिक ब्लेसिंग दी. अगर आप 2 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 का 15, परमेश्वर के वचनों को बार बार सीखना चाहिए. बार बार सीखने से ही आप इन्हें समझ पाएंगे. हालेलुया. मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, हालांकि ये मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं था, पर फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. 2nd चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 15, दूसरा अध्याय उत्पत्ति का, और उसका 15 वचन. सुने ध्यान से प्रभु क्या कहता है. प्रभु कहता है, एंड द लॉर्ड गॉड टुक द मैन. अब ये बहुत डीप बात है. प्रभु ने मनुष्य को लिया, ही टुक द मैन एंड पुट हिम इनटू द गार्डन ऑफ ईडन. उसको लिया और उसको अदन के बाग में रख दिया. यहाँ पे 2 हिब्रू वर्ड हैं बड़े ख़ास, यनाख, लखाश और यनाख. लखाश का मतलब किसी चीज़ को उठा लेना, जैसे हाथों से उठाया और उठा के यहोवा ने उसे क्या कर दिया,
लखा मतलब उठाया, यनाख उसको रख दिया। तो ये वचन बताता है कि आदम को यहोवा ने अदन के बाग में नहीं सृजा, आदम को यहोवा ने पृथ्वी पे किसी और जगह बनाया। और ये वचन ये भी बताता है कि अदन की वाटिका को पृथ्वी पे नहीं बनाया गया था। अदन की वाटिका समय में नहीं बनाई गई, पृथ्वी समय में बनी है। बेरेशित 12 जो हुआ ना जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में, इट ऑल हैपेंड इन टाइम, ये समय में बनाया गया। लेकिन अदन का बाग समय से परे बनाया गया, किसी और डिमेंशन में यहोवा ने क्रिएट किया। ये दुनिया मल्टी डिमेंशनल है। अदन का बाग एक ऐसे जोन में था, एक ऐसे आत्मिक रेल्म में था कि उसमें सारे जो डिमेंशन है यहोवा की इंटरसेप्ट करती थी। ऐसी ट्रांस डिमेंशनल एंट्री थी वहां पे कि दूसरी डिमेंशन के स्पिरिट बीइंग आसानी से आते जाते थे अदन के बाग में। और यहोवा ने पृथ्वी की मिट्टी से आदम को बना के अदन के बाग में उठा के रखा है। और अदन का बाग यहोवा ने पृथ्वी पे नहीं बनाया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यहोवा ने अदन के बाग को बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद किया, और किसको रक्षा करने के लिए लगा दिया? करूबीम को, चेरब को, और एक तलवार जो घूमती है वो उसकी रक्षा कर रही है, ताकि कोई स्पिरिट बीइंग अदन के बाग में घुसने की जुर्रत ना करने पाए। एंड वी डू नॉट नो हाउ गॉड ट्रांसपोर्टेड गार्डन ऑफ ईडन इनटू सम अदर डिमेंशन। गार्डन ऑफ ईडन इज नॉट नाउ इन दिस डोमेन वेयर वी आर लिविंग। जिस जगत में हम हैं वहाँ पे अभी अदन का बाग नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 21-22 अध्याय में हम देखते हैं नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के नीचे आ रहा है। एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो आप पढ़ के देखें, वचन में पढ़िएगा। हालेलुया। लगभग 2100 किलोमीटर से ज़्यादा वो लंबाई में है, और फिर उतनी वो चौड़ाई में है, और उतनी ऊंचाई में है। एक क्यूबिकल सिटी है। हालेलुया। देखें यहाँ पे क्या लिखा है 21 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के, एंड आई सॉ अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ एंड द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ पास्ड अवे एंड देयर वाज नो मोर सी। सी नहीं है, सी का समुंदर क्यों नहीं है ये सीक्रेट किसी दिन आपको मैं बताऊंगा। समुंदर से सारा मसला उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2 में शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं है अब। और क्या देखता है जॉन? आई सॉ द होली सिटी न्यू जेरूशलम कमिंग डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन प्रिपेयर्ड एज अ ब्राइड अडोर्न्ड फॉर अ हस्बैंड। ये यरूशलेम नया उतर के नीचे आ रहा है। पढ़ के देखें आप। खूबसूरत शहर है जो यहोवा ने बनाया है, और इसके 12 गेट हैं। देखें इसकी डिमेंशन दी गई है 16 वचन में। एंड द सिटी लायथ 4 स्क्वायर एंड लेंथ इज एज लार्ज एट द ब्रेड्थ एंड द मेजर्ड the city by the reed 12,000 furlong. The length and the breadth and the height of it are of equal size. Equal size की हैं ये। क्यूबिकल सिटी है जो स्वर्ग से उतर के आ रहा है। यही है गार्डन ऑफ ईडन। बिल्कुल यरूशलेम के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्ट हवा में लेविटेट कर रहा सिटी है ये। बाइबल पढ़िए भाई और बहनों, बाइबल बताती है नया यरूशलेम होगा और सियोन होगा, जायन जिसे हम सियोन कहते हैं। देयर विल बी न्यू जेरूशलेम एंड देयर विल बी जायन। जायन में, सियोन में मेमने का सिंहासन होगा, और अति धर्मी लोग जो प्रभु के संग संग चले हैं केवल वो सियोन पर्वत पे रहेंगे। और कुछ लोग रहेंगे नए यरूशलेम में, कुछ लोग रहेंगे नए आकाश में, कुछ लोग रहेंगे नई धरती में। ये डिपेंड करेगा आप अभी अपना जीवन कैसे जी रहे हो। प्रभु के पास जाके सभी एक तरह के नहीं हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पण करके जीता है। वो अपनी देह को रोज क्रूस पे चढ़ाता है, पाप से युद्ध करता है, अंधकार की ताकतों से लड़ता है। वो रोज तंग दरवाजे में से घुसता है और सकरे मार्ग पे चलता है। वो रोज क्रूस को उठाता है, रोज अपने आप का इनकार करता है, रोज शरीर की कामना, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड पे विजयी होता है। रोज रोज
संसार की ताकतों पे विजयी पाता है। वो जगत को प्यार नहीं करता, मसीह को प्रेम करता है। वो अपने माता पिता, बहन भाई, बीवी बच्चों को प्रभु से ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो प्रभु के लिए वफादारी का जीवन प्रतिदिन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, धर्मी जीवन जीता है। उसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन एक मशाल की तरह जलता है। वो प्रभु के लिए एक सिद्ध जीवन जीता है। हालेलुया। वो वफादार रहता है प्रभु के लिए। वो बहुत सा आत्मिक फल पैदा करता है और वो जय पाता है। एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा मसीह व्यक्ति है जो गुनगुना सा जीवन जीता है। उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया प्रभु के लिए, बस ठीक ठाक सा जीवन जिया है। और क्या अलग अलग लोगों का प्रभु के लिए अलग अलग दर्जे का समर्पण है। अलग अलग लेवल का प्यार करते हैं लोग प्रभु को, अलग अलग लेवल पे प्रभु के लिए कुर्बानी करते हैं। तो क्या सभी लोग बराबर हो जाएंगे? सबकी मिरास बराबर होगी स्वर्ग में? कभी नहीं। सुन लीजिए ध्यान से, कभी नहीं होगी। सबकी मिरास अलग अलग होगी। प्रेरित प्रभु का दास दानियल कहता अपनी पुस्तक में, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, खुद तो धर्मी जीवन जीते हैं लेकिन दूसरों को धर्मी बनाते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। प्रभु कहता है वो अंबर में, यहोवा परमेश्वर के अंबर में तारों की तरह चमकेंगे। फिर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में बताता है कि हर तारे की रोशनी एक जैसी नहीं है। तारे होंगे यहोवा के अंबर में लेकिन रोशनी अलग अलग होगी। आप कितना चमकेंगे अनंत काल में, हमेशा हमेशा के लिए, ये आपके हाथ में है आज। तारे का नूर अर्थात आपकी देह का नूर, हम जितने विश्वासी होंगे हम सबकी देह का नूर फर्क होगा। किसी में से कम रोशनी होगी 100 वॉट की, किसी के देह में से रोशनी निकलेगी 1000 वॉट की, किसी में से 5000, किसी में से 10,000, किसी में से रोशनी निकलेगी आफताब जैसी, चांद जैसी, किसी में से निकलेगी सूरज जैसी रोशनी, किसी में से कई सूरजों जैसी रोशनी निकलेगी। ये डिपेंड करता है अभी आप कैसा जीवन जी रहे हो। हालेलुया। The glory that you will radiate throughout eternity is contingent upon your life now. How you live for the Lord. आप प्रभु के लिए आज कैसे जीते हो। तो असली सुसमाचार तो यही है। असली सुसमाचार वो नहीं है जो झूठे नबी, झूठे प्रेरित लोगों को ठग विद्या से प्रचार कर रहे हैं। बरकतें 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 मटीरियल चीज़ों का प्रॉमिस करके अपनी भीड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है भाई और बहनों। असली कलाम है आपका नूर कितना होगा। जब प्रभु के चरणों में जाओगे क्या रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम से, उसे लिखा है लखाक, उसे लिया एंड यनाक, उसे अदन के बाग में रख दिया। और प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे खास बातें कही। आपको मालूम, बहुत ख़ास बातें अदन के बाग में प्रभु ने उससे कही। 2:15 में यहाँ पे 2 हिब्रू वर्ड है जो मैंने आपको बता दिया। लखाक का मतलब उसे उठाया, किसी और जगह से लिया जहाँ बनाया था, और अदन का बाग पृथ्वी पे उतारा यहोवा ने, और पृथ्वी पे अदन के बाग को रखा, और अदन के बाग में आदम को रख दिया। टू ड्रेस इट एंड टू कीप इट। हालेलुया। ताकि अदन के बाग को वो क्या करे? ड्रेस करे और अदन के बाग को कीप करे। किस लिए रखा गया? टू ड्रेस इट एंड टू कीप इट। हालेलुया। पावरफुल हिब्रू वर्ड्स हैं यहाँ पे, पावरफुल हिब्रू वर्ड्स। आपको मालूम कौन सा हिब्रू वर्ड है यहाँ पे कीप इट? कब कीप इट के लिए? द हिब्रू वर्ड टू कीप द गार्डन इज शमार, which means to draw the hedge, which means to stand as a guard, which means to keep tight vigil, which means to hold the scepter, hold the shepherd's staff, and don't let any intruder come in. आदम का काम था गार्डन को शमार करना। उसको प्रभु ने, मैंने बताया, 5 अद्भुत बरकतें दी। उसमें से एक बरकत मैंने आपको बताई, हिब्रू वर्ड इज मले, विच मीन्स गॉड गेव हिम द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी। वो जो अधिकार की लाठी दी
उस लाठी को अगर ऐसे सामने करता ना उस सांप के, वो जो सांप है उसके लिए हिब्रू वर्ड है नखाश। नखाश वहाँ से भाग जाता क्योंकि वो अधिकार आदम के पास था। हालेलुया। और आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा अपने वचन में कि औरत का सर उसका पति है, जिसका मतलब क्या है कि पत्नी अपने पति पत्नी जो है उसका सर अगर पति है तो सर का मतलब क्या है कि जो डिसीजन लेता है, फैसले लेता है, वो पति है। ये नहीं कि पत्नी सबसर्विएंट है, मैं ये टीच नहीं कर रहा हूँ कि पत्नी सबसर्विएंट है। पत्नी सबसर्विएंट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को आदम की पसली में से, पसली के डीएनए से बनाया है। उसने पैरों के डीएनए से नहीं बनाया कि स्त्री पाँव की जूती है, या परमेश्वर ने सर की स्कल की हड्डी से नहीं बनाया कि औरत सर पे चढ़ के रहे। उसको पसली से लिया, अर्थात दोनों बराबर हैं परमेश्वर के राज्य में दोनों के अधिकार बराबर हैं, दोनों समान रूप से प्रभु की सेवा करें। लेकिन पति जो है, पुरुष जो है, उसको परमेश्वर ने डिसीजन मेकिंग फैकल्टी बनाया। तो एडम को क्या करना चाहिए था? मले करना चाहिए था, वो स्टाफ अपने हाथ में रखना था और एडम को अधिकार लेना था, लेकिन उसने अधिकार नहीं लिया। हालेलुया। और फिर वचन में क्या लिखा है? वचन में ये नहीं लिखा कि पहली स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया, हवा के द्वारा पाप जगत में आया, जबकि बाइबल में लिखा है आदम के द्वारा पाप जगत में आया और उसने हम सब के ऊपर राज्य किया। क्यों प्रेरित पौलुस इस भेद को आगे खोलता है? प्रेरित पौलुस बताता है कि औरत भरमाई गई, शैतान ने स्त्री को भरमाया और वो शैतान के द्वारा भरमाई गई और उसने पाप किया। लेकिन आदम को शैतान ने नहीं भरमाया, आदम को शैतान ने कन्फ्रंट भी नहीं किया, फेस भी नहीं किया, लेकिन आदम ने फिर भी पाप किया। तो प्रभु का वचन बताता है ओनली ईव वॉज बिगाइल्ड, शी वॉज डिसीव्ड, बट एडम जस्ट गेव इन टू हिज वाइफ। He did not refuse to do something that his wife was doing, but he just yielded to his wife. कुछ जूइश रब्बी कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, इसलिए उसने फल खा लिया। लेकिन उन्होंने जीवते परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर की क्या आज्ञा थी? परमेश्वर की आज्ञा थी कि पूरी वाटिका के जितने फल हैं तुम बेखटके से खाओ। परमेश्वर ने बिलियंस ऑफ ट्रीज बनाए हैं, बिलियंस। भाई और बहनों, मैं 100 से ज़्यादा देशों में गया और मैंने हर कंट्री के फ्रूट को चखा। जितने कॉन्टिनेंट है ना, 6 के 6 कॉन्टिनेंट के सब फ्रूट मैंने खाए। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ फ्रूट, वेजीज और जो जो चीज़ें प्रभु ने रखी हैं। एनिमल किंगडम को देखता हूँ, मरीन लाइफ को देखता हूँ, बर्ड्स को देखता हूँ। आई जस्ट अप्रिशिएट गॉड, हाउ वास्ट क्रिएशन गॉड हैज़ क्रिएटेड अराउंड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने कितना कुछ सृजा है और मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बहुत कुछ उत्पन्न किया आदम के लिए, कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। केवल एक ही फल था जो यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा था कि ये तुम मत खाना, और देखिए वही उन्होंने खाया। वो चाहते तो जीवन के वृक्ष का फल भी खा सकते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको खाने से उन्हें रोका नहीं था। ओनली वन ट्री गॉड स्टॉप। इस ट्री के ऊपर भी किसी दिन हम और डीप स्टडी करेंगे और मैं हिब्राइक पर्सपेक्टिव में से आपको कुछ बड़ी डीप बातें शेयर करूंगा इसके विषय में। आज मैं आपको यरूशलेम की जो मिस्ट्रीज़ के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा शुरू करता हूँ और उसको हम कल 2-3 सेशन में उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तो परमेश्वर की जो पहली भविष्यवाणी थी अदन की वाटिका में, जेनेसिस 3:15 में 3 लोग थे वहाँ पे, एडम, ईव एंड नखाश, जिसे हम सांप कहते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले जो परमेश्वर का हेड था, मुखिया था, उससे बात करता है। परमेश्वर आदम से पूछता, व्हाई डिड यू डू इट?
तो एडम कहता है मैंने थोड़ा किया प्रभु, ये स्त्री जो आपने मुझे दी इसने मुझसे करवाया। आदम ब्लेम किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। प्रभु कहता है कि ये तूने क्यों किया? तो आदम को करना क्या चाहिए था? वहीं घुटने टेक के प्रभु से कहना चाहिए था, दया निधि, करुणा निधि, मेरे रचिता परमेश्वर हम पे दया करें, हमने आपके विरुद्ध में पाप किया है। शायद अभी तिशुबा की, पश्चाताप की शिक्षा भी नहीं थी अदन की वाटिका में, लेकिन एडम बड़ी कन्वीनियंटली जिम्मेदारी उठाने से अपने कंधों पे इनकार करता है, सारी जिम्मेदारी हवा के कंधों पे डाल देता है। यही पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तिशुबा का मतलब प्रभु कहता है मेरी ओर लौट आओ। तौबा का मतलब प्रभु की ओर लौटना, जिम्मेदारी लेना कि प्रभु ये काम हमने किया, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपने बुरे मार्गों से टलते हैं, पलटते हैं, प्रभु हमें क्षमा करें, हम आपकी ओर मुड़ते हैं। ये है पश्चाताप। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी के ऊपर डाला और प्रभु ने उसकी पत्नी से पूछा, उसने कहा मैंने नहीं किया, ये सांप जो आपने बनाया है। मतलब दोनों ने देखा जाए तो जिम्मेदारी यहोवा के ऊपर डाली। आदम ने कहा ये पत्नी जो आपने मुझे दी है, उसकी पत्नी ने कहा ये सांप जो आपने बनाया है। और आपको मालूम, परमेश्वर वहाँ एक अद्भुत भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर औरत से कहता है तेरा बीज, फिर शैतान की ओर मुखातिब होता है, शैतान के बीज के सर को कुचलेगा। एक महासंग्राम का ऐलान हो गया अदन के बाग में। परमेश्वर के बीज की लड़ाई है शैतान के बीज के साथ। ये भेद पूरा इज इंटरवोवन इन जेरूसलम। जेरूसलम के अंदर सारा भेद इंटरवोवन है। आपको मालूम रब्बी, यहूदी रब्बी क्या कहते हैं? यहूदी रब्बी कहते हैं यरूशलेम में मोरिया पहाड़ पे गुलगथा की पहाड़ी। आपको मालूम गोलगथा की पहाड़ी उसे क्यों कहा गया है? और लैटिन भाषा में उसे कलवरी कहा गया है और हिब्रू में उसे गोलगाथा कहा गया है, जहाँ पे परमेश्वर का बीज जो यीशु मसीह है वो सांप के बीज को कुचलता है और सांप का बीज उसकी एड़ी को डसता है और उसकी एड़ी में कील के निशान हैं, लेकिन वो उसके सिर को कुचलता है और उसका सर कुचला हुआ है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में उसका सिर फिर हील हो जाता है शैतान का। तो कल हम सुबह इसके ऊपर मनन करेंगे। द प्रोफाउंड मिस्ट्री दैट इज अंडरलाइंड इन माउंट मोराया, मोरिया पहाड़ पे गोलगाथा, द प्लेस ऑफ स्कल, खोपड़ी की जगह, हालेलुया, जहाँ पे क्रूस गाड़ा गया। क्रूस यज्ञ की वेदी है। क्रूस ईसाइयों का धर्म चिन्ह नहीं है। क्रूस वो यज्ञ की, महायज्ञ की वेदी है जहाँ पे सृष्टि का महान रचिता एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ की बलि की सामग्री है परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। आपको मालूम वेदांती लोगों ने कहा प्रजापति ही यज्ञ सनावी, प्रजापति ही यति यज्ञ यशमेशा, प्रजापति ही यति यज्ञ समधि, प्रजापति ही यति यज्ञ मोक्ष प्राप्ता। ऋग्वेद में पूरा एक भरतखंड है जिसके अंदर इस यज्ञ के विषय में लिखा है और लिखा है अहाँ यज्ञ भुवन से नाभि, ये यज्ञ पृथ्वी की नाभि पे होगा, नेवल ऑफ द अर्थ। मैं कल बताऊंगा आपको, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है यरूशलेम और गोलगाथा, खोपड़ी की जगह जहाँ पे क्रूस गाड़ी गई, वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इज़राइल धरती का केंद्र बिंदु है। ये 2006 में मैंने प्रचार किया, 3 में अमेरिका में, और मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड जो थे वो खुश नहीं हुए इतने कि शायद आई वाज कैरिड अवे इमोशनली। बट देन इन 2008 देयर केम अ रिपोर्ट फ्रॉम नासा, दे confirmed that Jerusalem is the very center of the earth. Then some of them apologized to me. Hallelujah. पढ़िएगा खुद आप 38 अध्याय इज़िकियल नबी की पुस्तक और उसका 14 वचन।
उसको हिब्रू में पढ़िएगा। उर्दू की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि इसराइली लोग जो हैं वो ज़मीन की नाफ पे रहते हैं, जिसे धुन्नी बोल देते हैं पंजाबी में, नेवल ऑफ द अर्थ, दैट्स द ओरिजिनल हिब्रू वर्ड। चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल ड्वेल अपॉन द नेवल ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की नेवल है वहाँ पे है गोलगाथा। कल इसके विषय में सुबह हम मनन करेंगे, क्या मिस्ट्री है यरूशलेम की, माउंट मोराया की, गोलगाथा की। तो सुबह होपफुली 10 o'clock या 9 या 10 मैं आपको बता दूंगा। वील गैदर एंड वील हैव 3-4 सेशंस ऑन दीज मिस्ट्रीज। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। आमेन।